जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 7 श्लोक 12। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत एवेति तान् विधि न त्वहं तेषु ते मयि। और हे अर्जुन, यह समझ कि जो कुछ सात्विक, राजस या तामस भाव अर्थात पदार्थ हैं, वे सब मुझसे ही हुए हैं, परंतु वे मुझ में हैं, मैं उनमें नहीं हूँ। मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियों के विषय, तन्मात्राएं, महाभूत और समस्त गुण अवगुण तथा कर्म आदि जितने भी भाव हैं, सभी सात्विक, राजस और तामस भावों के अंतर्गत हैं। इन समस्त पदार्थों का विकास और विस्तार भगवान की अपरा प्रकृति से होता है और वह प्रकृति भगवान की है, अतः भगवान से भिन्न नहीं है। उन्हीं के लीला संकेत से प्रकृति के द्वारा सबका सृजन, विस्तार और उपसंहार होता रहता है। हे अर्जुन, तुम यह बात अच्छी तरह ध्यान में रखो। यदि ये विकार उत्पन्न हों तो वे भी मुझ में ही उत्पन्न होते हैं, परंतु जिस प्रकार स्वप्नावस्था की देह में जागृत अवस्था नहीं होती, उसी प्रकार इन विकारों में भी मैं नहीं रहता। बीज वास्तव में रस द्रव्य का ही बना हुआ और उसी से भरा हुआ होता है, परंतु अंकुर और डालियों में जो कठोर रूप वाली लकड़ी होती है, वह उसी बीज कण से बनी हुई होती है, परंतु फिर भी क्या कभी उस लकड़ी में कहीं बीज का गुण रहता है? इसी प्रकार चाहे ऊपर से देखने में भले ही यह जान पड़े कि मुझ में ही विकार उत्पन्न हुए हैं, तो भी मैं उन विकारों में नहीं रहता। आकाश में मेघ तो आते हैं, परंतु मेघों में आकाश नहीं रहता। मेघों में जल तो होता है, परंतु उस जल में मेघ नहीं रहते। फिर मेघों में रहने वाले जल में जब क्षोभ पैदा होता है, तब उसमें बिजली की चमक दिखाई पड़ती है, परंतु क्या यह कहा जा सकता है कि उस चमकने वाली बिजली में पानी रहता है? आग से धुआं निकलता है, परंतु क्या उस धुएं में भी कभी आग रहती है? इसी प्रकार मुझ पर विकार होते हैं, परंतु वह विकार मैं नहीं हूँ। All states of beings, goodness, passion or ignorance, are manifested by my energy. I am in one sense everything, but I am independent. I am not under the modes of this material nature. This is a world of three gunas, which is sattva, purity, rajas, passion, and tamas, inertia. All sentient and insentient objects are the aggregate of these three qualities of nature. One quality predominates in them, and the predominant quality imparts to the object its distinctive character or definite properties. In the gods, sages, milk and green gram, sattva is predominant. In Gandharvas, kings, warriors and chilies, rajas is predominant. In demons, shudras, garlic, onion and meat, tamas is predominant. Though these beings and objects proceed from me, I am not in them, they are in me. I am independent. I am the support for them. They depend on me just as clouds are in the sky
but sky is not in the clouds. Water is in the clouds, but clouds are not in that water. When there is friction in the water of the clouds, the lightning is produced. Is there water in the lightning? The fire produces smoke. Is there fire in the smoke? Similarly, Prakriti, nature, works with my energy, but I am not that nature. Prakriti. Om. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. അദ്ധ്യായം 7, ശ്ലോകം 12. അല്ലയോ അർജുന, എല്ലാ സാത്വിക, രജസ് അഥവാ തമസ് വികാരങ്ങളും എന്നിൽ നിന്നാണ് വന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ആ ഭാവങ്ങളെല്ലാം എന്നിലുണ്ട്, പക്ഷേ ഞാൻ അവയിലില്ല. മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹംഭാവം, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, തന്മാത്രകൾ, മഹാശരീരങ്ങൾ, എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും പ്രവൃത്തികളും, അതുപോലെ എല്ലാ വികാരങ്ങളും സാത്വിക, രജസ്, തമസ് വികാരങ്ങൾക്ക് കീഴിലാണ്. ഈ എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും വികാസവും ഈശ്വരന്റെ അപരപ്രകൃതിയിൽ നിന്നാണ്. പ്രകൃതി ഈശ്വരൻ്റേതാണെന്നും അതിനാൽ അത് ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ലെന്നും, എല്ലാം പ്രകൃതിയിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും വികസിക്കുകയും നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതെല്ലാം ഈശ്വരന്റെ പ്രവൃത്തികൾ മൂലമാണ്. ഹേ അർജുന, നീ ഇത് മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുക. അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടായാൽ അവ എന്നിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നു. എന്നാൽ സ്വപ്നാവസ്ഥയിലുള്ള ശരീരത്തിന് ഉണർന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയില്ലാത്തതുപോലെ ഈ അസ്വസ്ഥതകളിൽ ഞാൻ ഇല്ല. ഒരു വിത്തിൽ നിന്ന് മുളയ്ക്കുന്ന മുളയിലോ അതിൻ്റെ കടുപ്പമുള്ള ശാഖകളിലുള്ള തടികൾക്കോ ആ വിത്തിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഗുണങ്ങളുണ്ടോ? ഇതേ രീതിയിൽ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടായതായി തോന്നിയാലും ആ അസ്വസ്ഥതകളിൽ ഞാനില്ല. ആകാശത്ത് മേഘങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുന്നു, പക്ഷേ ആകാശം മേഘങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വസിക്കുന്നില്ല. മേഘങ്ങളിൽ വെള്ളമുണ്ട്, പക്ഷേ വെള്ളത്തിൽ മേഘങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടില്ല. കൂടാതെ മേഘങ്ങൾക്കുള്ളിലെ വെള്ളം അസ്വസ്ഥമാകുമ്പോൾ അതിൽ മിന്നൽ ഉണ്ടാവുന്നു. എന്നാൽ മിന്നലിൽ വെള്ളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാമോ? പുക തീയിൽ നിന്ന് വരുന്നു, പക്ഷേ ആ പുകയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും തീ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ? ഇതേ രീതിയിൽ എന്നിൽ വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു, പക്ഷേ ആ വികാരങ്ങളിൽ ഞാനില്ല. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. जय सद्गुरुदेव, जय पदशरणम. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. अध्याय 7, श्लोक 12. हे अर्जुना, या जगात जे काही सात्विक, राजस आणि तामस भाव किंवा पदार्थ आहेत ते सर्व माझ्यापासूनच उत्पन्न झालेले आहेत असे समज. परंतु ते माझ्यात आहेत, पण मी मात्र त्याच्यामध्ये नाही. मन, बुद्धी, अहंकार, इंद्रियांचे विषय, तन्मात्रा, पंचमहाभूत तसेच सर्व गुणदोष आणि कर्म हे सर्व सात्विक, राजस आणि तामस भावांच्या अंतर्गत येतात. या सर्व पदार्थांचा विकास आणि विस्तार भगवंताच्या अपरा प्रकृतीपासूनच होतो. ही प्रकृती भगवंताचीच असल्यामुळे ती त्याच्यापासून वेगळी नाही. त्याच्या लीला संकल्पनानेच प्रकृतीद्वारे सृष्टीची निर्मिती, विस्तार आणि लय होत असते. हे अर्जुना, ही गोष्ट नीट लक्षात ठेव. जर काही विकार उत्पन्न झाले तर ते माझ्यामुळेच उत्पन्न होतात. परंतु जसे स्वप्नातील शरीरात जागृत अवस्थेत अस्तित्व नसते, तसेच त्या विकारांमध्ये सुद्धा मी राहत नाही. बीज प्रत्यक्षात रसयुक्त द्रव्याने बनलेले असते आणि त्याच रसाने भरलेले असते. पण त्यातून उगवणारा अंकुर आणि फांद्यांमध्ये जी कठीण लाकडी रचना तयार होते ती त्या बीजापासूनच बनते. तरीसुद्धा त्या लाकडामध्ये बीजाचा गुण राहतो का? त्याचप्रमाणे वरून पाहता जरी असे वाटले की विकार माझ्यातून उत्पन्न झालेले आहेत, तरीही मी त्या विकारांमध्ये नाही. आकाशात मेघ येतात, पण मेघांमध्ये आकाशात नसते.
मेघांमध्ये पाणी असते, पण त्या पाण्यात मेघ नसतात. त्या पाण्यात घर्षण झाल्यावर वीज चमकते, पण त्या विजेमध्ये पाणी असते का? अग्नीतून धूर निघतो, पण धुरामधून अग्नी असते का? त्याचप्रमाणे प्रकृती माझ्या शक्तीने कार्य करते, परंतु मी ती प्रकृती नाही. तात्पर्य, हे जग या 3 गुणांनी म्हणजे सत्व अर्थात शुद्धता, रज अर्थात क्रियाशीलता आणि आसक्ती, आणि तम म्हणजे जडत्व अज्ञान यांनी बनलेले आहे. सर्व सजीव व निर्जीव वस्तू या 3 गुणांच्या संयोगानेच तयार झालेले आहेत. प्रत्येक वस्तूमध्ये यापैकी एक गुण अधिक प्रबळ असतो आणि तोच त्या वस्तूचे विशेष स्वरूप ठरवतो. उदाहरणार्थ, देव, ऋषी, दूत आणि मूग यामध्ये सत्वगुण प्रमुख असतो. गंधर्व, राजे, योद्धे आणि मिरचीमध्ये रजोगुण प्रमुख असतो. राक्षस, क्षुद्र, लसूण, कांदा आणि मांस यांच्यामध्ये तमोगुण प्रमुख असतो. जरी हे सर्व माझ्यापासून उत्पन्न झाले असले तरीही मी त्याच्यावर अवलंबून नाही, ते माझ्यावर अवलंबून आहेत. जसे मेघ आकाशात असतात, परंतु आकाश मेघामध्ये नसते, तसेच हे सर्व माझ्यामध्ये आहेत, परंतु मी त्याच्यात नाही. प्रकृती ही माझ्या शक्तीने कार्य करते, पण मी त्या प्रकृतीपासून स्वतंत्र आहे. जय गुरुदेव. నా సద్గురు సందేశం గీతా సుధ పరమసత్మాత్మ శ్రీ ఎస్పాజీ మహారాజు వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము అధ్యాయము 7 జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగము శ్లోకం 12. ఏ చైవ సాత్వికా భావా రాజశాస్తామసాశ్చయే మత్త ఏవైతి తాన్విద్ధి నత్వహం తేషు తేమయి. ఓయి అర్జున, ఏ కాస్త సాత్విక, రాజసిక, తామస భావములు అనగా పదార్థములు ఉన్నవో అవన్నీ నా నుండే ఉద్భవించినవని తెలుసుకో. అయితే అవి నాలో ఉన్నాయి, కానీ నేను వానిలో లేను. మనసు, బుద్ధి, అహంకారము, ఇంద్రియములు, ఇంద్రియ విషయములు, తన్మాత్రలు, మహాభూతములు మరియు సమస్త గుణములు, అవగుణములు, ఇంకా కర్మ మొదలగు ఎన్ని భావములు ఉన్నవో అవన్నీ కూడా సాత్విక, రాజస మరియు తామస భావాల అంతర్గతమైనవే. ఈ సమస్త పదార్థముల వికాసము, వ్యాప్తి భగవానుని అపరా ప్రకృతి నుండి జరుగుతుంది. ఆ ప్రకృతి భగవానుడి, అందుచేత అది భగవానుడి కన్నా భిన్నమైనది కాదు. ఆయన యొక్క లీలా సంకేతముచ్చే ప్రకృతి ద్వారా అన్నిటి సృష్టి, వ్యాప్తి, ఉపసంహరణ జరుగుతున్నది. ఓ అర్జున, ఈ విషయాన్ని నీవు బాగా గుర్తుంచుకో. ఒకవేళ ఈ వికారములు కానీ ఉత్పన్నమైనట్లయితే అవి కూడా నాయందే ఉత్పన్నమవుతాయి. అయితే స్వప్నావస్థలో దేహానికి జాగృత స్థితి ఏ విధంగా ఉండదో అదే ప్రకారంగా ఈ వికారములందు కూడా నేను ఉండను. బీజం వాస్తవంగా రసద్రవ్యముచే తయారవుతుంది, దాంతోనే నిండి ఉంటుంది. అయితే అంకురము మరియు కొమ్మల యందు కఠోరమైన ఏ పుడక అంటే కట్టె ఉంటుందో అది ఆ బీజ కణముచే తయారవుతుంది. అయినప్పటికీ మరలా ఆ పుడకల యందు ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా ఆ బీజగుణం ఉంటుందా? అదే ప్రకారంగా బాహ్యం నుండి చూస్తే నాయందే ఈ వికారములు ఉత్పన్నమైనట్లుగా ఎంతో బావుగా కనిపిస్తున్నప్పటికీ నేను ఆ వికారముల యందు ఉండను. ఆకాశమందు మేఘాలు వస్తూ ఉంటాయి, కానీ మేఘాల యందు ఆకాశం ఉండదు. మేఘాల యందు జలం ఉంటుంది, కానీ ఆ జలమందు మేఘం ఉండదు. ఆ మేఘములందు ఉండే జలములో క్షోభ జనించినప్పుడు దానిలో విద్యుత్ మెరుపు కనిపిస్తుంది. అయితే మెరిసే ఆ విద్యుత్ మెరుపులో నీరు ఉంటుందని మనం చెప్పలేము. చెప్పగలమా? చెప్పలేము. అగ్ని నుండి పొగ వస్తుంది, అయితే ఆ పొగలో కూడా ఎన్నడైనా అగ్ని ఉంటుందా? అదేవిధంగా నాలో వికారములు ఉంటాయి, కానీ ఆ వికారములు మాత్రము నేను కాదు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై పశరణం. ये चैव सात्विका भावा राजसास्ताम साश्चये मत्त एवेति तान विद्धि न त्वहम तेषु तेमयि. आहे अर्जुन, ई बुझू जे किछ सात्विक, राजस व तामस भाव माने पदार्थ अछि से सब हमरे से उत्पन्न भेल अछि, मुदा ओ सब हमरा में अछि आ हम ओहि सब में नहीं छी. मौन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रिय के विषय, पंच महाभूत आ समस्त गुण, अवगुण, कर्म आदि जतेक भाव अछि ओ सब सात्विक, राजस आ तामस भाव में पड़ैत अछि. एहि समस्त पदार्थ सबके विकास आ विस्तार
भगवान के अपरा प्रकृति से होइत अछि आ ओ प्रकृति भगवान के अछि, तैं भगवान से फराक नहीं अछि। हुनकर लीला संकेत सँ प्रकृति द्वारा सबके सृजन, विस्तार आ उपसंहार होइत अछि। हे अर्जुन, अहाँ ई नीक जकाँ ध्यान में राखू। जँ ई विकार उत्पन्न होइत अछि तऽ ओहो हमरे में उत्पन्न होइत अछि। मुदा जेना स्वप्नावस्था में देह जागृत अवस्था में नहीं रहैत अछि, तहिना एहि विकार सब में सेहो हम नहीं रहैत छी। बिया वस्तुतः रस द्रव्य सँ बनल आ ओहि सँ भरल होइत अछि, मुदा जखन ओकरा सँ अंकुर आ डारि निकलैत अछि तखन जे काठ बनैत अछि से ओहि बिया कण सँ उत्पन्न होइत अछि। तैयो कि कखनो ओहि काठ में बिया के गुण रहैत अछि? ओहिना ऊपर से देखला पर भने ई बुझाय जे हमरे में विकार उत्पन्न भेल अछि, मुदा हम ओहि विकार सब में नहीं रहैत छी। आकाश में मेघ तऽ अबैत अछि, मुदा मेघ सब में आकाश नहीं रहैत अछि। मेघ सब में जल रहैत अछि, मुदा एहि जल में मेघ नहीं रहैत अछि। फेर जखन मेघ सबके जल में क्षोभ उत्पन्न होइत अछि तखन ओहि में वज्र के चमक दिखाई पड़ैत अछि। मुदा की ई कहल जा सकैत अछि जे ओहि चमकैत वज्र में पानि रहैत अछि? आगि सँ धुआं निकलैत अछि, मुदा ओहि धुआं में आगि नहीं रहैत अछि। एहि प्रकारे हमरा में विकार होइत अछि, मुदा ओ विकार हम नहीं छी। अखिल भारतीय संत मत सत्संग, पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।